Okay, good afternoon, everyone. Let us begin with our day 16. Not taking much of the time here. I won't take much of the time. Let us begin here. Okay. So day 16, why long-term approach? As I've already explained in the previous, I can say video, we will start here. Slide show क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है. Why long-term approach? So as I've already told you, why long-term approach? So after reading a lot of books, successful investors, they don't care that whether the market is going to fall today or it will rise up, but they know very well that after some years, after 5 years or 10 years, they are going to get the good return. So they try to accumulate the shares as much as possible. So their focus is here in finding the undervalued stocks that can be held for an extended time. So they focus on the undervalued stocks. So now, which stocks are undervalued? Now, for example, there is a formula or there is a fundamental analysis. तो हमारा वो fundamental analysis के classes अभी जल्दी ही चालू होंगे. आगे के जो lectures है, that will be completely after 22nd or 23rd day. जो हमारा 23rd lecture हो जाएगा. उसके बाद के जो lectures रहेंगे, that will be of totally based on the fundamental analysis. So do not miss that lecture and be present in the lecture. Live lecture में रहोगे तो you can ask as many as question as possible from your side. So now, how the firm is undervalued, that is being calculated by the way of formula. That is, for example, I will give you the example here. Like MRF is valued at rupees 78,000. 78,000 rupees का एक share है यहाँ पे. The one share price is 78,000. But the actual value of the stock should be 85,000. उसका stock का value कितना होना चाहिए? 85,000 as per the P ratio, intrinsic value, CAGR, वो सब चीजें जो fundamental analysis करने के बाद they came to know that the stock is undervalued. Undervalued stock में मतलब 78,000 rupees का भी price है, वो stock undervalued है, उसकी value होनी चाहिए 85,000 rupees. So आप वो stock को खरीद लोगे. The undervalued stock you will purchase. See, purchasing decision is in your hand. अब अंडरवैल्यूड स्टॉक खरीदोगे तो आपको दो तीन चीजें और भी एनालाइज करनी है. व्हाई द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड, व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग द स्टॉक, व्हाई इट इज नॉट फेयरली वैल्यूड, व्हाई इट इज नॉट ओवरवैल्यूड. ओवरवैल्यूड रहेगा तो चलो लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग बिकॉज दे सी द कंपनीज फ्यूचर पर्सपेक्टिव. It is fairly valued, then also you can buy, no problem. But if it is undervalued, then why people are not buying that stock? What is the reason? Is the MRF company is not having any future है या नहीं है उनका? So all that things you have to take in consideration, then only you will buy the undervalued stock. ऐसा नहीं कि बाबा सर 85,000 का स्टॉक प्राइस इसका जाता है लेकिन ये 78,000 में मिल रहा है, सर मैं बाय कर लेता हूँ. Before buying, you have to analyze why you are buying. Ask the question why you are buying and why other people are not buying. That you should ask to yourself. So here the successful investors are there, they go for the undervalued stock. But before going to the undervalued stock, what they do is like they do the analysis here. Why they want to buy that stock, okay, and why people have not bought that. Reasons: betting on short-term price movements, doing a large amount of trading drives up taxes and transactional cost. So now why these successful investors, they do not go for long-term, they do not go for short-term approach. वो लोग short-term approach के लिए क्यों नहीं जाते successful investors? The reason behind that is there are three major reasons here. Betting on short-term price movement. So short-term movements के लिए the successful investors or whoever the people are there, they cannot predict the short-term movements whether it is going to go up or down. At least अगर अच्छे से technical analysis भी किया, if the person has done the technical analysis, but then in a week he'll fail for 2 times. 7 days में जो 5 दिन मार्केट खुला रहता है तो 5 दिन में से 3 दिन तो मार्केट में वो कमाएगा पैसा, लेकिन 2 दिन गवाएगा भी, बिकॉज इतना परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, बिकॉज it depends on various factors. The market going up and down it depends on the various factors. It is just not dependent on the technical analysis. It is dependent on the news also. It depends on the customer quality of the company, of the product which are providing, or it depends on the we can say political decision made or company's decision made. So many other factors are there. So it is unpredictable short-term price movements. So that's why the people go for the long-term approach. Then second reason why they do not go for short-term, that is doing a large amount of trading. बहुत सारे पैसे का ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे. मतलब 10,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप 1 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो. 10 times more than that you will get the margin here. जैसे मैंने आपको उस दिन बताया टेक्निकल, जब मैं स्क्रीन पे प्रैक्टिकल जब आपका ले रहा था, I showed you that when you buy, if you have 1,000 rupees, you can buy for 5,000 or 10,000 rupees ka shares you can buy. So you get a large amount of trading. But large amount of trading, what they will do, if you will earn the money or if you lose the money, you have to pay the brokerage.
ब्रोकरेज इज कंपलसरी। ब्रोकरेज किस पे लगता है? आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर लगता है, मतलब आपने जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया उतना आपको ब्रोकरेज पे करना है। हियर इट विल ड्राइव अप, एंड इफ यू अर्न द मनी यू हैव टू पे द टैक्स। मतलब आप पैसा भी कमा रहे हो तो टैक्स भरना पड़ेगा, पैसा गवा रहे हो तो भी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट एंड द ब्रोकरेज यू हैव टू पे। So that is what the people they go for the long term approach here. Is it clear, students? Is it clear? Kindly reply. Short term capital gain tax, STG, LTG, then STT is there, security transaction tax. Various types of tax are there, Kanchan. Kanchan, you will study in this direct tax subject. Direct tax subject, there is one of the source called as capital gain, income from capital gain. Okay, that is income from capital gain, CG. CG के अंदर दो टाइप के capital gain होते हैं, short term capital gain, STG and LTG. STG के अंदर भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं यहाँ पे, और उसमें आपको दूसरा जो टाइप है वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ऑल द टैक्स कंसेप्ट इज देयर, यू हैव टू गो फॉर सेपरेट, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ टैक्स मींस टैक्स यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। यू हैव अर्न द इनकम हियर, आपने पैसा कमाया है शेयर्स बेच के, तो गवर्नमेंट को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे, सो यू हैव टू पे द टैक्स अमाउंट फ्रॉम दैट। क्लियर? इज इट क्लियर? या दैट्स ग्रेट। So you can see some छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बनाया, tax implication of the income equity shares. Suppose if you are buying equity shares, taxable at the applicable slab rate. So whatever the slab rate the government decided every year in the budget in the month of February, they what that slab rate, that taxable slab rate is applied here. So like for example, if you go for long term मतलब यहाँ पे एक साल से ज्यादा, मतलब आपने shares को buy किया है and then you are selling the share after 1 year or after 2 year or 5 year, 10 years, 20 years. So gains up to 1 lakh rupees are exempt. 1 लाख रुपए तक आपको जो भी आपने पैसा कमाया है आपको exempt रहेगा, but balance is taxable at 10% without indexation. Now do you know what is indexation? Indexation means here it is a cost inflation index. मतलब हमारा जो indexation है वो apply होता है cost inflation index के basis. Like आज का 1 रुपया है वो कल शायद उसकी वैल्यू 1.5 रुपया हो जाए या 1 रुपया 30 पैसा हो जाए, या फिर 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 2 रुपया हो जाए या 3 रुपया हो जाए, क्योंकि पहले का जो 1 रुपया था आज शायद 10 साल पहले का जो 1 रुपया था आज उसकी वैल्यू 100 रुपया रहेगी। करेक्ट हो ना? बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन. So that's why the government has, the income tax department has given the cost inflation index. On the basis of that the indexation is calculated. मतलब 2001 का 1 लाख रुपया आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? सपोज 50 लाख रुपया, और आपने उस चीज को 80 लाख में सेल किया है, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडेक्सेशन अप्लाई होगा, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिनी जाएगी? 50 लाख गिनी जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. 1 लाख रुपीज आपने 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट खरीदा था 2001 में, आज उसको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई करके उसका इंडेक्सेशन कैलकुलेट करके द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन टुडेज डेट इज 50 लाख रुपीज, and you have sold that investment for 80 lakh rupees. So your capital appreciation, your capital gain is 30 lakh. Your capital gain is not 79 lakh. Your capital gain is 30 lakh. So this is what the indexation means. मतलब आज की वैल्यू, आज के इसमें उस पैसे की वैल्यू, आज की वैल्यू उसकी कितनी है? वो टाइम पे जो पैसा था 1 लाख रुपया, आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपया. Just I'm giving an example to make you understand. And उसमें आपने उसको सेल किया 80 लाख. I'll tell you. ओके, क्लियर विद इट? सो एक मेरे को कंसेप्ट एक क्लियर करने दो. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो 15% भरना है, मतलब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10% है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको 15% टैक्स भरना है विदाउट एनी इंडेक्सेशन. क्लियर? सेम वे फॉर द इक्विटी म्यूचुअल फंड. इक्विटी म्यूचुअल फंड रहेगा सेम, एवरीथिंग इज सेम. म्यूचुअल फंड में भी आपका अभी, हाँ आपने बोला इंडेक्स, सर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अर्न द मनी, तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर, मतलब 10 साल के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड का पैसा निकालोगे तो उसमें वो टाइम पे टैक्स का स्कीम क्या है, वो टैक्स का स्कीम क्या है, कौन सा बजट है, क्या अप्लाई हो रहा है स्लैब रेट, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर टैक्स कितना भरोगे आप फ्यूचर में. ठीक है. दूसरी बात चंदन दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अपने टैक्स का पैसा भी बचा सकते हो. यू गेट मेनी ऑप्शंस टू सेव योर मनी, सेव योर टैक्स, सॉरी.
सो आपके पास वो टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, यू कैन इजीली सेव योर टैक्स, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। देन इंडेक्सेशन इज करंट वैल्यू, यस इंडेक्सेशन इज अ करंट वैल्यू, इंडेक्सेशन इज कॉल्ड एज अ करंट वैल्यू कंसेप्ट, बिकॉज हियर आपका जो पहले का 1 लाख रुपए है वो आज का 50 लाख बन गया है, या पहले का 1 रुपया आज का 100 रुपए बन गया। So that is what the current value of that property or of that investment which you bought it before 20 years or 10 years. Clear with it, Kanchan? Chandan, clear with your doubt? Kindly reply, Chandan. Yeah. Thank you, Kanchan. Yeah, that's great. Let us go ahead here. Let us go ahead. Benjamin Graham, what he is saying that he taught the long-term value investment strategy of purchasing stocks at a price below their intrinsic value. Intrinsic value के नीचे का प्राइस अगर रहेगा मार्केट वैल्यू, देन गो विद द स्टॉक, आई विल टेल यू। अब आप बोलोगे सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, इट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। आई कैन से हियर इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे गिनी जाती है, इट इज बीइंग काउंटेड हियर सेपरेट फ्रॉम हाउ द मार्केट वैल्यू इज। तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक शेयर है जो टाटा मोटर्स का शेयर है, वो 499 रुपीज का एक शेयर है आज के डेट में, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 350 रुपीज। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी का अगर देखा जाए, वैल्यूएशन किया जाए तो टोटल असेट अपॉन टोटल इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल असेट अपॉन टोटल इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू व्हाटएवर द वैल्यू यू गेट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है, वो भी बताऊंगा मैं फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कांसेप्ट्स हियर इन द फंडामेंटल एनालिसिस क्लास, वेयर आई विल टेक योर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट है, पी आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, सीएजीआर आ जाएगा, ठीक है, सीए आ जाएगा, क्यूए आ जाएगा, और एक कंपनी को सही तरीके से पहचानना है तो डेप्ट इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। तो वेरियस रेशियोज आर देयर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ यू कैन मेजर द स्टॉक, आप उस कंपनी के का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, आई एम टेलिंग दिस इन द लेक्चर हियर दैट once we complete with the certification program you will get 10 days, I'll give it 10 days to give your project work। आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपकी एग्जाम्स तो शायद नहीं होगी, अगर हुआ तो मैं एमसीक्यूज भी ले लूंगा, बट द प्रोजेक्ट वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई विल बी गिविंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी से ही बता के रख रहा हूँ ताकि आप लेक्चर में बराबर से ध्यान दो। आई विल गिव यू द कंपनी नेम, you have to do the fundamental analysis in the given format। मैं आपको फॉर्मेट भी दूंगा, वो फॉर्मेट में आपको एनालिसिस करना है, उस कंपनी के बारे में पूरा पता करना है, एंड यू हैव टू गिव मी 10 पेज, 10 पेज का वो पूरा एनालिसिस करके देना है, 10 अलग अलग चीजें आपको बतानी है मुझे। यू विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट एज वेल एज यू आर गोइंग टू गिव मी दी नोट्स ऑफ दैट, मतलब आप मुझे एक प्रिंट कॉपी दोगे 10 पेज का, एक फोल्डर बना के फोल्डर में डाल के, ताकि वो हमारे लिए फ्यूचर में वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। एंड आई विल शेयर ऑल दी 100 प्रेजेंटेशंस विथ यू ऑल, जिसने सबमिट किया तो उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और वो सभी को काम आएगा। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया, वी 94 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। तो 94 स्टूडेंट्स इफ दे विल डू द fundamental analysis of 94 different companies, then you will be able to know that which stocks you have to pick for the long term. So it is going to give you a big benefit after your certification program. I'm really very much happy to share this, that आपको बहुत अच्छा खासा benefit मिलेगा once the 94 students will will do the fundamental analysis of the, no, it will not be in a group। 94 students बोला मतलब 94 अलग projects, as an individual or we should, sir, we have to write or make, you have to write, लिखो, आपके फायदे के लिए, जितना लिखोगे भी चलेगा, मैं लिखने वाला काम चेक नहीं करने वाला, but you have to type it and you have to make the PPT also। आपको PPT भी बनाना है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा कैसे करना है, do not worry about that, but this is just for your information that you have to do it। तो आपको करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, you have to be attentive in the lecture and you have to whatever I'm teaching you, see I'm not, मैं कुछ बड़बड़ या फालतू का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी है whatever I'm teaching you point to point, so just pay attention in the lecture, okay। So let's go ahead here। So intrinsic value, as the intrinsic value, the value investors, they look for the companies with higher intrinsic value than market value। मतलब intrinsic value market value से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। market value क्या होनी चाहिए, पीपीटी क्या हो गया पवन, पीपीटी means presentation, PowerPoint presentation, पीपीटी का फुल फॉर्म,
आई नो कुछ बच्चे रहेंगे जो 12th के बाद FY में आए हैं, दे डोंट नो अबाउट PPT. डू नॉट वरी अबाउट, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट, डू नॉट वरी. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना वैसे, ठीक है. ओके, यस यस यस, PPT बनाना है. यस पवन, यस. ओके, आई थिंक आपको पता है सर. व्हाट यू आर टीचिंग आई अंडरस्टैंड वेरी वेल. दैट्स ग्रेट, बट you are teaching whatever I'm teaching, you are understanding it, but I should know in the written work. क्या आप मेरे बिना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो या नहीं, या मुझे हर बार फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके देना पड़ेगा? सो यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट हियर आफ्टर द 40 डेज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. आपको मुझे कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूं. आप मुझे आगे 40 दिन के बाद ऐसा बताओ कि सर मैंने ये कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया है, या आपके रेफरेंस के लिए आप इस कंपनी में स्टॉक में पैसा लगा सकते हो सर. दिस इज वेरी मच ग्रेट टू यू. So मुझे वहां पे तभी प्राउड फील होगा that yes, whatever 40 hours I have spent it with you all, yes definitely it has been, बोलते ना, it has been useful, और आपके लिए बहुत बेनिफिट हुआ है, and even I feel proud about that. Okay, चलो come to the topic here. So here Benjamin Graham, he has always taught the strategy, long-term value investing strategy of purchasing the stock at a price below their intrinsic value. So intrinsic value is the real value of the company, where you will find out by doing the calculation, doing the fundamental analysis, and you will find out the stock of the company's intrinsic value. Once you find out the intrinsic value, you will compare it with the market value, and if the intrinsic value is more than the market value, or if it is more than the market value, then you have to pick that stock. आपको purchase करना है stock. But apart from that, again it comes here political news, the company share in the company का जो management का जो director का share कितना है, ठीक है, वो सब चीजें, हर चीजें वहां पे देखनी है. तो I am going to teach you all that fundamental analysis part. But yes, if it is intrinsic value is more than the market value, or the market value is less than the intrinsic value, go for that stock. आप उस स्टॉक के लिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है. देन होल्डिंग देम अंटिल देयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी. सो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट प्राइस भी फिर धीरे धीरे इंट्रिंसिक वैल्यू के लेवल पे आएगा, या उससे ज्यादा भी आ सकता है. तब तक होल्ड करना है, फिर उसको सेल आउट कर देना है. सो दैट इज व्हाट द बेंजामिन ग्राहम सजेशन इज. क्लियर? Warren Buffett says here that if you aren't thinking about owning the stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Very greatly said by Warren Buffett that अगर आपकी ताकत उसको 10 साल होल्ड करने की नहीं है वो स्टॉक की, तो आप उसको 10 मिनट भी होल्ड मत करो. आप उसको 10 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते हो, आपकी ताकत नहीं होती. अगर आपकी ताकत 10 साल होल्ड करने की, तभी वो स्टॉक को आप 10 मिनट के लिए खरीद सकते हो. सो दैट इज व्हाट द वॉरेन बफेट सेज हियर. लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ MRF. MRF शेयर प्राइस इन 1993 वाज ₹11. 11 रुपए का शेयर था वो. कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years, 30 और 28 years, 28 years, 29 years. सी द पावर हियर. अगर आपने MRF में, जस्ट अ मिनट, MRF में अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता, एक शेयर 11 रुपए का, मतलब आपने 909 शेयर आपने परचेस किए होते. कितने परचेस किए होते? 909 शेयर्स. ठीक है. नाउ इट हैज क्रॉस 81,000. आज उस शेयर की प्राइस हो गई है 81,000. तो 81,000 इंटू 909, 7,36,29,000. So the value is 7,36,29,000. कितना रुपए लगाया आपने? सिर्फ 10,000 रुपए. 10,000 की भी पहले वैल्यू थी. अगर उसको हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से अगर देखें, तो 10,000 है, तो उसका सपोज लो 1 lakh इंटू टूडेज वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू 1 lakh इंटू 298 डिवाइड बाय 100. इट वाज समवॉट, आज की वैल्यू उस इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आज की वैल्यू देखा जाए तो कुछ समवॉट इट इज 50 लाख के आसपास आता है एक अप्रॉक्स. मतलब उस टाइम का 10,000 1993 का, आज उसकी वैल्यू मैक्सिमम इन्फ्लेशन करके भी 50 भी लाख नहीं होती है, 30 लाख ही पकड़ो, तो आज उसकी 20-30 लाख होती है वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से. बट आप तो इन्फ्लेशन से भी आगे चले गए.
You are getting 7 crore 36 lakh 29,000 here. So this is what the long term approach is. हाँ, MRF मद्रास रबर फैक्ट्री कंपनी का नाम है MRF. MRF एक शेयर है, ठीक है. MRF नॉर्मली कंचन, ये हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते थे बचपन में. मैं भी MRF बोला मतलब MRF मतलब सचिन तेंदुलकर ने जो बैट पकड़ी है वो MRF, और मुझे वही लगता था कि MRF जो है वो बैट ही बनाती है, बट MRF बैट नहीं बनाती है. MRF ये कंपनी है जो मद्रास रबर फैक्ट्री, वो रबर बनाती है, ठीक है. तो रबर बनाती है वो कंपनी, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को, मतलब वो इतने बड़े फेमस पर्सन को, उन्होंने अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो MRF का लोगो उन्होंने बैट पे चिपका के दिया है. बैट नॉर्मल सी कंपनी दूसरी कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन उसके ऊपर MRF का स्टिकर लगता है. दैट इज व्हाट MRF इज. क्लियर कंचन? इवन मैं भी बचपन से मैं भी कंफ्यूजन था, मुझे भी पता नहीं था. धीरे धीरे वी गेट द नॉलेज. जैसे हम लोग कुछ ना कुछ बातें करते डिस्कस करते, वी गेट द नॉलेज हियर. सो इफ यू हैव सम नॉलेज, यू कैन आल्सो शेयर in the chat box. Okay, so you can see the chart analysis here, that it was like, see, you can see the chart analysis here, that यहाँ पे आप देख सकते हो. देन धीरे 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 करके देखो कैसे बढ़ गया ये, and it went here in again. See, it came down here. तभी भी किसी ने पैसा, जिसने पैसा निकाल लिया वो फंस गया वहां पे. उसको सिर्फ 10,000 का कितना मिलेगा, 11 रुपए का कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा. बट जिसने नहीं निकाला, होल्ड करके रखा, सी इमीडिएटली सी द राइज हियर, अगेन इट फॉल, अगेन इट वेंट अप, अगेन इट फॉल. सो शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिलेगा नीचे ऊपर आएगा, बट कीप पेशेंस हियर. सी अगेन इट इज गोइंग डाउन, अगेन इट इज गोइंग डाउन, अगेन इट वेंट अप, एंड देन हियर इट इज. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू. 16 जून 2021 को 82,000 वैल्यू है हमारे का. सो ये है the power of long term approach. Now you can remove the money. आपने अच्छा खासा अंक कर लिया तो you can remove that money. ठीक है. Now the stock has seen the 4 crashes here. 4 crashes stock ने यहाँ पे देखा है. That is 1992, 2008. ठीक है. तो यहाँ पे the stock has seen the 4 crashes. तो यहाँ पे हर्षद मेहता का स्कैम, you know very well, 1992 में स्कैम आया. .com बबल है, तो यहाँ पे एक बबल बन गया. बहुत सारे लोगों ने बाय करने के, और अल्टीमेटली इट फॉल डाउन. ठीक है. बड़े बड़े प्लेयर्स ने उन्होंने पैसे निकाल दिए. फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आया था 2008 में. देन करंट कोरोना वायरस क्रैश. सो ये 4 क्रैशेस हमारे स्टॉक मार्केट ने देखे हैं. लेकिन फिर भी आज देखो, जैसे कोरोना वायरस का भी हम लोग रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वायरस में कैसे क्रैश हुआ मार्केट, डायरेक्टली 50,000 सीधा 25-30,000 के पॉइंट्स पे आ गया. लेकिन नाउ यू कैन सी कोरोना वायरस के बाद तुरंत मार्केट ने क्या जोर पकड़ा है, सीधा 60,000 पे गया है. सो यू कैन सी ऑटोमेटिकली उठ के खड़ा भी हो गया मार्केट. सो डू नॉट वरी अबाउट दिस बिग क्रैशेस ऑल्सो. इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म लाइक 20 years 30 years का अगर आपका अप्रोच है, डू नॉट वरी अबाउट दिस क्रैशेस. ओके. The stock crashed for more than rupees 3,500 in 1996 to rupees 500 in 2001. मतलब जो सेंसेक्स निफ्टी था, सेंसेक्स था वो 3,500 का था, वो सीधा 500 पे भी आ गया. लेकिन फिर भी लोगों ने वो होल्ड करके रखा. आप स्टॉक होल्ड करके रख सकते हो. The stock also crashed from 8,000 in 2007 to 1,500 in 2008. यहाँ पे वो एक साल में भी यहाँ पे क्रैश आया. लेकिन then too people have not removed their money. So investor who invested in 1990s see his wealth erode by 70 to 80% multiple times. तो अगर आप वो पैसे निकाल लिए रहते, अगर वो टाइम पे लॉस में भी पैसा अगर आप निकाल ले रहे थे, तो आपका 70 to 80% यहाँ पे लॉस भी हो जाता था. So अगर जिसने किसी ने पेशेंस नहीं रखा वो टाइम पे, और वो टाइम पे पैसे निकाल लिए, जब मार्केट डाउन हो गया, बोला चलो 3,500 से 500 रुपए हो गया, तो अभी हमारा 3,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए हो गया है, तो अल्टीमेटली आई विल रिमूव द स्टॉक. चलो 500 तो मिलेगा वो टाइम पे, बट देयर वेल्थ दे हैव इरोडेड. I will, yeah, it was the best time to buy the stock in the COVID time, not now. Now the market has gone up. आप भी मार्केट आपका बहुत ऊपर गया स्टूडेंट. सो अभी तो आप बाय नहीं कर सकते हो. अभी आपको बाय करना है तो थोड़ा सा, अभी गिरा है मार्केट, थोड़ा और भी गिरने दो, करेक्शन आने दो, दिवाली के बाद और थोड़ा नीचे आएगा. Whenever there is a fall ना, at that time you buy, you start accumulating the shares for long term. ठीक है. तो आपको मैं अभी आगे एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, तो वो आपको उससे समझ जाएगा when is the best time to buy the stock. It is not during the COVID time. हाँ, it was at the time of COVID, but किसी के पास तभी पैसा ही नहीं था ना सुरेश. लोग पैसा निकाल रहे थे मार्केट में से, खाने के लिए पैसा नहीं था लोगों के पास. मिडिल क्लास पीपल, रिच पीपल, ऑल वर अफेक्टेड हियर विद द बिजनेसेस. सो तब तो पैसा ही नहीं था किसी के पास, तो किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया ना, तभी तो मार्केट डाउन था ना. और जिसने वो टाइम पे
कुछ ना कुछ एडजस्ट करके उधर इन्वेस्ट कर दिया, दे हैव अर्नड अ लॉट. ओके, श्रेयस क्लियर? So here long-term belief is if an investor believes in the company and ready to play the long game, then he can generate enormous amount of wealth. तो अगर इन्वेस्टर केस में उसने सोच के रखा है कि वो कंपनी में उसको भरोसा है पूरा and he is ready to play the long game, then definitely he can generate enormous amount of wealth, that is 7,300 times in the case of MRF. So MRF के केस में तो देख सकते हो, मैंने आपको बताया 7,300 times the person has earned the income if you would have invested in 1993 and removed the share 2021 में अगर निकालेगा तो. So this is the power of the long term. Clear? Let me give you one other example, that is of the Page stock prices compounded at 45% per annum between March 7 to June 17. 10 साल के पीरियड में देखो कितना परसेंट. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि there are 3 short time periods when its stock didn't rise that much. ठीक है, सो 3 ऐसे टाइम है जहां पे स्टॉक प्राइस इतने बढ़े नहीं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, यू कैन सी द सर्कल हियर. 2007, 8 एंड 9 में यहाँ पे स्टॉक की प्राइस थी वो एकदम स्टैग्नेंट चल रही थी, अचानक से धीरे 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 उठना चालू हुआ है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत हाई हुआ, यहाँ पे अगेन वापस फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल अगेन हाई फॉल हुआ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि these are the period at this time. अभी आ रहा है आवाज ना आपको? आवाज नहीं आ रहा है तो बराबर बोलो नो वॉइस सर. अभी आवाज आ रहा है तो हाँ तो बोलो सर वॉइस आ रही है. अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. ओके, so these are the 3 short time periods. So why these are the 3 short time periods? तो यहाँ पे क्यों ऐसा था? बिकॉज वहां पे बड़े बड़े स्कैम्स हुए या बड़े बड़े यहाँ पे बबल्स जोन हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये उसका तभी स्टॉक प्राइस यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ मार्केट का. Now what is CAGR of 45%? But the Page industry has performed so well in the remaining period that it gives a CAGR of 45% from 2007 to 17. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज इंडस्ट्री का यहाँ पे उन्होंने नो डाउट उन्होंने यहाँ पे दे हैवंट परफॉर्म्ड एनीथिंग. 2007 से लेके 9 तक में कुछ नहीं परफॉर्म किया. तभी आप बोलोगे सर पेज इंडस्ट्री में 10 रुपए डाल के रखा है मैंने, एक शेयर 10 रुपए का खरीदा है सर, 3 साल हो गया उसका 15 रुपए भी नहीं हुआ सर. अब मैं सोच रहा हूँ उसको निकाल देता हूँ. तो आप जब सेल करोगे ना, then also you will ask the question to yourself that why you are selling this stock? Why? Whether the company is not performing, whether there is a political situation, whether the employees are not good, whether the product is not working, or are they having any different vision. So you have to find out the reason that why you want to sell the stock. And ultimately देखो 2009 से क्या हुआ यहाँ पे बढ़ते गए. So the major thing you have to learn in this 40 days session is when to buy the stock. Yes, I am coming to that point, Kanchan. When to buy the stock and when to sell it. ये आपको डिसीजन लेने सही तरीके आना चाहिए. ये अगर आपने डिसीजन लेना सीख लिया then definitely you will earn a money. बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. Now, what is CAGR? It is a compounded annual growth rate. एक तरीके का compounded annual growth rate रहता है. मतलब हर साल आपका पैसा कितने से बढ़ रहा है, कितने से कंपाउंड होते जा रहा है. मतलब आज आपने 10% कमाया, अगले साल आपने 20% कमाया, तो आपका कंपाउंडेड कितना हो गया यहाँ पे 15% कंपाउंडेड ग्रोथ हो गया. मतलब आपने 10 का सीधा डबल कर दिया है, 25% कर दिया. तो ये एनुअली क्या होता है, कंपाउंड होते जाता है. आप अगर 5% प्रॉफिट कमा रहे हो, बाद में दूसरे साल 2% का लॉस कर रहे हो, फिर बाद में 10% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उस तरीके से वो एनुअली कैलकुलेट होता है. देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द फंडामेंटल एनालिसिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज कैलकुलेटेड कंपाउंडेड. वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है. ठीक है. नाउ हियर
द CAGR इज अ मेजरमेंट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो लंबे समय के लिए सोचते हैं। सो इन्वेस्टर्स टू कैलकुलेट द रेट एट विच द क्वांटिटी ग्रू ओवर टाइम। सो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती जा रही है, कितना प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव वन एग्जांपल, अ कंपनी विद अ रेवेन्यू दैट ग्रू फ्रॉम $3 million to $30 million ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years। पिछले 10 साल में एक कंपनी ने 3 मिलियन से लेके 30 मिलियन कमाए। तो हियर इन दैट सिनेरियो द CAGR वुड बी अप्रोक्सीमेटली 25.89%। तो यहाँ पे CAGR क्या हो जाएगा? 25.89% होगा। सो हियर दैट इज व्हाट द CAGR मींस। मतलब यहाँ पे उस कंपनी ने पिछले 10 साल में उसका CAGR कितना रह चुका है, वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। क्यों फाइंड आउट करना है? ताकि हम कंपेयर कर सके कि आने वाले फ्यूचर में उसका CAGR कितना और हो सकता है, कितना और हो सकता है CAGR। तो दैट इज व्हाट द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग CAGR कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द CAGR ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इनटू द पावर शेयर। मैं पावर सेक्टर के शेयर में पैसा लगा रहा हूँ और मैंने टाटा पावर का शेयर खरीदा, उसका CAGR है 17% लास्ट 10 years का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने भी बाकी के जो पावर इंडस्ट्रीज है, अडानी पावर है, अडानी एनर्जी है, या फिर NTPC है, या बाकी जितने भी जो पावर के सेक्टर है, आई विल आइडेंटिफाई दैट इन अवर कंट्री दैट दिस पावर सेक्टर का, टोटल सेक्टर का, पावर सेक्टर का कितना परसेंट CAGR है। मतलब वो पूरे पावर सेक्टर ने कितना पैसा कमाया, तो पावर सेक्टर ने पूरा कमाया है 12%, 12%। और टाटा पावर का CAGR 17%। दैट मीन्स इट इज अ गुड साइन दैट पावर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा CAGR कौन कर। सुशांत, CAGR मीन्स, मैंने अभी तो रिपीट किया, CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सुशांत, इट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब होता है। So it is a measurement used by the investors to calculate the rate at which the quantity grew over the time. Yes, am I audible, students? Okay. So that is what the CAGR means here. Okay? CAGR का मतलब. So CAGR of 45% here of Page Industries you can see. मतलब उन्होंने स्टार्ट के 3 साल में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन बाद में के जो 7 साल है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया. So you have to hold it. So sometimes you have to take the decisions of holding the stock here. ठीक है? Then conclusion क्या आ जाता है यहाँ पे? Believe in the long-term investing approach. Even if the company is excellent, then also there are chances of no returns. And if your investment horizon is short-term, तो आपको यहाँ पे क्या बिलीव रखना है? आपको हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच पे बिलीव रखना है. कंपनी एक्सेलेंट रहेगी,
चांसेस ऐसे भी रहते हैं कि कभी आपको रिटर्न्स ना मिले, लेकिन फ्यूचर में द रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी टाटा जैसी कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न द मनी, डेफिनेटली, वो उनके सवाल ही नहीं आता है। तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू अर्न द मनी। सो अगर कोई स्कैम ना हो, तो कोई ये ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न द मनी एंड दे आर गोइंग टू शेयर द मनी विद अस, सो वी कैन इन्वेस्ट इनटू देम फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। सो दैट इज व्हाट द कंक्लूजन इज। You identified a good company, you have the ability to hold it for a long term, then there is no point trying to be too precise about timing your entry or your exit. तो आपने अगर long term approach सोच लिया है, then it will be easy for you to buy and sell the stock. मतलब आपके लिए डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, आपको डिसीजन यहाँ पे लेना ही नहीं है, आपको खाली बाय करके छोड़ देना है। एंड अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ आज मुझे अभी बस हो गया, मेरे लिए इतना इनफ है पैसा, आई विल सेल द स्टॉक टुडे। सो दैट इज व्हाट, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू बी प्रिसाइज अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आपको कोई ऐसा प्रिसाइज टाइम ढूंढने की जरूरत नहीं कि मुझे कब एग्जिट लेना है मार्केट से और कब एंट्री लेना है। सो दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म अप्रोच इज। You can ask your doubt. We have completed with day 15. If you have any doubt, then please ask. Yes, students? Any doubt? Please ask. What is Nifty Bees? Vedanti, we have not come to the future and options and the technical part. So definitely once we will come with that part, I will explain that. Not to create the confusion. Do not go with that Nifty Bees part and all. Abhi kuch mat karna. Just go. If I had a owner of the, I had to own of the Reliance. Get the question here. ये डायरेक्ट मैसेज मत करो जिशान, मेरे लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। आप एवरीवन को ही मीटिंग में रख के करो, क्योंकि मेरा फिर मैसेज दिखता नहीं है दूसरे को भी। मैंने यहाँ पे बोला था प्लीज वेट, वॉइस जब नहीं आ रहा था, प्लीज वेट स्टूडेंट, तो आपको ही डायरेक्ट मैसेज जा रहा है, तो प्लीज डू नॉट मैसेज इन डायरेक्ट वे। आप पूछ रहे हो तो सभी को सवाल पूछो। If I had to owner of Reliance with 1%, then how many shares I have? No, you cannot own 1% share. Not possible. बाप रे, not at all possible. बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अमाउंट है वो। पूरा पालघर बेच के भी नहीं खरीद सकते हो। सर बीएससी कब जाएंगे? यस, आई एम इनटू इट, आई एम इनटू टॉक विद देम। सो जैसे ही कुछ अगर मुझे इन्फो आता है देन डेफिनेटली विल गो आफ्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। वी आर गोइंग टू गो। चलिए, आज सवाल बड़े ही अलग आ रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड कोई पूछ नहीं रहा है। यस, आई गॉट इट जिशान, जिशान को मैंने बोल दिया है रिप्लाई। हाँ, अभी एवरीवन को सवाल गया। ठीक है, या ओके। सो शैल वी गो अहेड विद द सेकंड पीपीटी, सेकंड प्रेजेंट, दैट इज डे 17। ऐसी कौन सी कंपनी है जैसे हम लोग, जस्ट अ मिनट, ऐसी कौन सी कंपनी जैसे हम लोग लॉन्ग के लिए पेंशन जैसे काम आए? पेंशन जैसे काम आए, पेंशन जैसे काम है मतलब पेंशन तो दो तरीके से मिलता है आपको। मतलब जब आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड बेसिस पे मिलता है। कम्यूटेड पेंशन एक साथ मिल जाता है, अनकम्यूटेड मतलब मंथली आपको मिलता है। तो पेंशन के बेस पे तो कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देगी। बट कोई भी कंपनी, मतलब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे कांचन, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो दैट विच कंपनी यू हैव टू इन्वेस्ट। आई कांट से, मैं अभी नहीं बोल सकता कि आप रिलायंस में इन्वेस्ट करो, टाटा में इन्वेस्ट करो, बट once we complete the lecture, you will be able to understand that how the fundamental analysis is done. और आपको मैं प्रोजेक्ट देने ही वाला हूँ, तो आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो। एक नहीं, 5 कंपनी का करो। 5 कंपनी में से जो कंपनी आपको बेटर लग रही है, आपको आपका दिमाग लगा के आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी बेटर है, मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए, इट इज योर डिसीजन, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के भी लिमिट्स है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के लिमिट फराना कोई लिमिट नहीं रहती है। आपको 50 करोड़ लगाना है, लगाओ पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली टैक्स का सोच के लगाना, मतलब आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा समझ के लगाना। ऐसा ही नहीं कि आपने लोगों से पैसे ले लिए अचानक से और 50-100 करोड़ की अमाउंट आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा दिखता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया, तो आपको घर पे नोटिस आ सकती है। सो इफ यू आर पुटिंग द मनी देन पुट इट वाइसली। एक साथ इतना सारा पैसा मत लगाओ। हाँ, आपके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि आपने ब्लैक का पैसा निकाल के लगा दिया, तो गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कम टू नो एनी हाउ। सो वट एवर द मनी इज देयर, इन्वेस्ट इट स्लोली स्लोली। एक साथ पैसा एक ही दिन में नहीं लगाना रहता है। देखो, आप अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए जा रहे हो, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल द शेयर प्राइस ऑफ टाटा एलेक्सी इज
₹1000 टाटा एलेक्सी, ठीक है, ₹1000 का प्राइस है। आपने सोचा मुझे टाटा एलेक्सी के कम से कम 100 शेयर खरीदने, बट आपके पास 100 शेयर खरीदने के लिए 1,00,000 चाहिए। सो 100 into 1000, that is 1,00,000 rupees. You need 1,00,000 rupees to invest into Tata Elxsi share. So what you are going to do today? You will buy 10 shares. अब आपके पास पैसे 1,00,000 नहीं है, लेकिन आप 10 शेयर खरीदोगे, आपके पास 10,000 है। फिर आपको 1 महीने के बाद अचानक से आपके पास और 10,000 रुपए है, तब शेयर का प्राइस है ना 1,050 रुपीज है। तो आप 2-3 दिन 4 दिन आप रुकोगे, ट्राई देखोगे कि लाइक 2-4 दिन के अंदर प्राइस कम होता है या बढ़ता है। तो अगर कम हो गया तो आपका बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 1,020 रुपए हो गए तो आप बाय कर लोगे 10 शेयर। तो मतलब आपका यहाँ पे 30 का बेनिफिट हो गया, आपने 30 रुपए कम में बाय किया मार्केट प्राइस से। अल्टीमेटली एक और महीने के बाद तीसरे महीने में 10,000 रुपए आपके पास और है। अब वो शेयर का प्राइस मार्केट पूरा डाउन है, मार्केट पूरा डाउन है तो टाटा एलेक्सी भी डाउन आ गया, तो सीधा 900 रुपीज का शेयर आ गया। तो वो आप ट्राई करोगे कि चलो मेरे पास अभी कम में बाय कर रहा हूँ तो मैं शायद 10,000 नहीं 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूं। तो यू विल ट्राई टू अक्यूमुलेट द शेयर्स इन सच अ वे दैट यू गेट इट इन अ वेरी लेस अमाउंट, लेस प्राइस में आपको मिले वो शेयर। तो जितने कम प्राइस में मिलेगा ना, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट होते जाएगा धीरे धीरे। वो शेयर्स की प्राइस तो बढ़ने वाली है, 1000 के ऊपर का ही रेंज है उसका, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गो अप। बट यू हैव बाइड दैट शेयर इन 990 और 900 रुपीज, सो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से आपको दिखना चालू हो जाएगा कि इतना डिफरेंस अमाउंट है, मतलब बढ़ गया इतना रेंज। सो दैट इज व्हाट द यू कैन डू इन दैट वे, अक्यूमुलेट द शेयर्स इन सच अ वे। तो धीरे धीरे कर सकते हो इन्वेस्ट, वो भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, एक ही साथ अगर आपने 1,00,000 के शेयर खरीद लिए 1,000 के, सपोज 1,000 रुपए का 100 शेयर आपने खरीद लिए, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अचानक से टाटा एलेक्सी 800 पे चला गया, अब क्या करोगे? अब तो पैसे नहीं है आपके पास लगाने के लिए, आपने 1,00,000 रुपए एक साथ लगा दिए, अब पैसे नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? 800 में शेयर अवेलेबल है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए, तो यू हैव टू होल्ड इट। आपको अल्टीमेटली रुकना पड़ेगा, फिर 800 का, फिर 1,000 पे जाएगा, फिर 1,200 पे जाएगा, तब आपको प्रॉफिट दिखेगा। सो व्हेनेवर यू वांट टू बाय द शेयर, बाय इट इन स्मॉल क्वांटिटीज। आपकी ताकत है 100 शेयर खरीदने की, लेकिन आप 10-10 करके ही बाय करो, उसको अक्यूमुलेट करते जाओ। कोई शेयर का मैक्सिमम प्राइस कितना जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट कैन गो, उसके डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी सेंटिमेंट के ऊपर। आई रियली डोंट नो दैट, मैंने एयरप्लेन मोड पे डाला है फिर भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दे पीपल आर कॉलिंग मी, सीरियसली इट इज ऑन एयरप्लेन मोड, एरोप्लेन दिख रहा है मुझे इधर, किंतु आई डोंट नो। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? अब तो रिप्लाई कर दो यस सर, ऐसा कुछ तो नो वॉइस आ रहा है यहाँ पे सब लिखा हुआ। ओके थैंक यू। या जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर योर डाउट हियर। क्या पूछ रहे थे आप यहाँ पे? स्टॉक मार्केट में करियर, कंचन यू कैन गो विद अ करियर इन द स्टॉक मार्केट। लोगों का पैसा लेके आप एक फर्म ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। यू हैव टू वर्क इन द इन्वेस्टमेंट फर्म्स लाइक मोतीलाल ओसवाल और 5 पैसा या फिर ज़ेरोधा और एनी अदर फर्म यू कैन वर्क आउट। ओके, तो और इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा सिर्फ पैसिव इनकम क्रिएट करना है, मेरी इनकम का सोर्स दूसरा कुछ है, आई कैन गो विद दैट। मैं उसमें पैसा कमाऊंगी सर, और मैं मेरा पैसा जो भी आएगा उसमें अर्निंग में से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कोचिंग क्लासेस है या फिर वट एवर इज देयर, लाइक क्लासेस कॉलेज या वट एवर इज देयर, आई एम अर्निंग एन इनकम एंड देन डेफिनेटली आई एम using that money into the stock market and investing in that money into the stock market. Okay, so that is what नेटवर्क की वजह से होता है। या क्या होता है नेटवर्क की वजह से? डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो जिशान मेरे को, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं डायरेक्ट मैसेज का, प्लीज डायरेक्ट मैसेज मत किया करो। एवरीवन पे क्लिक करके रखो, वहां पे जब आप चैट कर रहे हो ना एवरीवन पे करो प्लीज। मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आता है, फिर मैं टाइप करता हूँ तो सिर्फ आपको ही मैसेज जाता है जिशान, प्लीज डू नॉट डू दैट। या ओके ओके,
So let us start with the second part here, second day 17, that is mistakes to avoid in the stock market. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिस्टेक्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में. ठीक है, सो शैल वी गो अहेड स्टूडेंट्स विद योर परमिशन. ठीक है ना, ले सकते हो ना, कैपेसिटी है ना सुनने का, एक हाफ एन आवर और सुनने का कैपेसिटी है आप लोग का. मेरा तो है बोलने का कैपेसिटी, बिकॉज मुझे मजा आ रहा है बोलने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए. यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Only buying penny stocks. What do you mean by penny stocks? Can anyone tell me what is penny stock? What is penny stock? Penny stock क्या होता है? Yeah, thank you Kanchan. Yeah, thank you for the appreciation. Thank you so much. बोलो. नहीं पता. पेनी स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जिसकी वैल्यू बहुत, यस वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 5 to 15 रुपीज के प्राइस में रहता है पेनी स्टॉक. 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के अंदर का स्टॉक समझ लो पेनी स्टॉक है. पेनी मतलब छोटा. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखो, पेनी स्टॉक्स में अच्छा खासा पैसा मिलता है. एक शेयर सीजी पावर का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ सीजी पावर. 7 रुपए का, 6 रुपए का शेयर जो है वो आज 150 क्रॉस कर चुका है और वो 250 तक जाने वाला है. मुझे पता है वो, आई हैव द आइडिया दैट वो 250 तक जाने वाला है. माय फ्रेंड इज वर्किंग ओवर देयर, बट फिर भी मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा उसमें क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है. सो मुरुगप्पा ग्रुप करके उसने उसको टेक ओवर किया सीजी पावर कंपनी को. सो हियर अल्टीमेटली वो शेयर का 6 रुपए का शेयर सीधा 150 रुपए हो गया. मतलब आप सोच लो कितना परसेंट रिटर्न हो गया यहाँ पे. अगर मैं उस 1000 शेयर भी खरीदता उसका 6 रुपए में, तो मेरे पास 166 शेयर होते उसके आज, और आज उसका प्राइस है 150 रुपया. मतलब 1000 का सीधा 24,900 रुपया हो जाता, वो भी विद इन 1.5 ईयर. पैसे बहुत मिल रहे, बट चांसेस ऐसे होते हैं कि कभी कभी वो 6 रुपए का शेयर सीधा 1 रुपया भी हो जाता है या 50 पैसा भी हो जाता है. तब सोच लो कितना नुकसान भी होता है वैसे. ठीक है, सो सिर्फ पेनी स्टॉक अगर आप 1-2 लाख रुपए का पेनी स्टॉक अगर बाय करके रखोगे, देन देयर इज नो यूज. सो दैट मिस्टेक यू शुड अवॉइड. 50% loss require 100% gain. If a stock loses 50% of its value, then it has to gain 100% to come back to its previous level. So जितना छोटा स्टॉक रहता है ना उतना जल्दी गिरता भी है. तो एंड दिस हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेनी स्टॉक. 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपया गिर गया, 50% गिर गया, सीधा 5 रुपए हो गया. अब आपने तो 10 में खरीदा था, आपने कितने में खरीदा था? 10 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए हो गया ना. उसका लॉस कितना हो गया? उसका लॉस कितना हो गया? एग्जाम्पल ऑफ पेनी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, जयप्रकाश पावर, बहुत सारे शेयर्स है. बता रहा हूँ, चलो मैं आपको पेनी स्टॉक्स के एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको प्रैक्टिकल बताने ही वाला हूँ, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे यस आइडिया भी है, वोडाफोन आइडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 10 रुपए का. यस बैंक भी है. ठीक है, 10 रुपए का यहाँ पे एक शेयर है, मैंने खरीदा है. अब उसका 50% लूज हो गया. कितना हो गया? 50% गिर गया. 50% गिर गया मतलब कितना गिर गया? 5 रुपया गिर गया. वो कितना गिर गया? अभी उसकी वैल्यू 5 रुपए. अब अगर उसको ऊपर आना है तो उसको कितना गेन करना पड़ेगा? मुझे प्लीज श्रेयस जस्ट मुझे ये स्लाइड एक्सप्लेन करने दो, मैं आपका जवाब देता हूँ, सभी का जवाब देता हूँ. क्या है? जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस. ये पॉइंट पे जरा ध्यान दो ना प्लीज, ये पॉइंट पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 रुपए का जो स्टॉक है वो 50% लूज हो चुका है. 50% लूज हो मतलब कितना रुपए हो गया? 5 रुपए हो गया स्टूडेंट. 5 रुपीज. 10 का स्टॉक, 10 रुपए का 5 रुपए हो गया. मतलब कितना टका कम हुआ? 50% लॉस हुआ यहाँ. अब 50% लॉस हुआ स्टूडेंट, तो अब वो 5 रुपए हो गया. अब वो 5 रुपए से उसको अगर 10 रुपए वापस आना है तो उसको 100% गेन करना पड़ेगा. मतलब वो 5 का सीधा कितना करेगा? 5 का अगर 50% गेन होगा तो कितना होगा? 7.5%, 7.5 रुपए होगा गेन. लेकिन उसको 10 रुपए पे आने के लिए 100% का गेन चाहिए. सो हियर इफ अ स्टॉक लूजेस 50% ऑफ इट्स वैल्यू, देन इट हैज टू गेन 100% टू कम बैक टू इट्स प्रीवियस लेवल. So this is what you should not invest in the penny stocks. Penny stocks में ही completely invest नहीं करना, थोड़ा बहुत करो. I am not telling you not to buy, but you can buy some. 1,000 रुपए, 500 रुपए का बाय करके रखो, छोड़ दो.
ठीक है, एक रिस्क की तरह उसको छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द about the lose of 50% and gain of 50 lose of 50% and gain of 100%. How can we understand that a stock is penny stock? You can go with the market capitalization. मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन उसका चेक कर सकते हो आप कि उसकी वैल्यू कितनी है कंपनी की, और कंपनी की वैल्यू कितनी है और उसके स्टॉक प्राइसेस, नॉर्मली यू विल फाइंड द स्टॉक प्राइसेस बिलो 50. दीज सच स्टॉक्स आर दी पेनी स्टॉक्स, ठीक है। उसकी वैल्यू, जैसे कि एक और शेयर है, नाम नहीं याद रहा है मुझे, एक और है, बहुत सारे शेयर्स है, एक नहीं बहुत सारे वेरियस शेयर्स पेनी स्टॉक्स, ठीक है। बट पॉपुलर पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं कि कोई नाम नहीं सुना खाली डाल दिया पैसा और भूल गए, पैसा नहीं चलेगा, ठीक है। देन बिलीविंग दैट दिस टाइम इट्स डिफरेंट, हमेशा ऐसा सोचना, अरे नहीं नहीं ये जेपी पावर है ना, 1 रुपया है ना अभी, 3 रुपया ना शेयर का, ये 10 रुपया जाने वाला है, इस बार तो जाएगा, गए साल नहीं गया लेकिन इस बार जाएगा। सो बिलीविंग दैट दिस इज अ टाइम इज डिफरेंट, तो ये टाइम डिफरेंट है ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ये अवॉइड करो मिस्टेक। दिस टाइम इट्स डिफरेंट, द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स ऑन द स्टॉक मार्केट, इस बार तो पैसा कमा के रहूंगा, ये बहुत एक्सपेंसिव वर्ड है, डू नॉट यूज दैट वर्ड, ठीक है। डू नॉट एवर टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू यूज दिस वर्ड। हाउ मच मार्केट कैपिटल, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ सुरेश, मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। हाउ मच मार्केट कैपिटल शुड पेनी स्टॉक, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट। पेनी स्टॉक के कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं कैपिटलाइजेशन। पेनी स्टॉक्स में लॉस ज्यादा होता है, यस लॉस ज्यादा होता है, गिरता है तो बहुत गंदा गिरता है, बढ़ता है तो भी बहुत बढ़ता है अच्छा खासा, ठीक है। तो आपको पेनी स्टॉक लेने के बाद रोज नींद नहीं आएगी रात को, 10,000 50,000 का स्टॉक लेके रखा है तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कंपनी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल में, मुझे ये स्लाइड कंप्लीट करने दो, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स ऑन द स्टॉक मार्केट इज, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, नेवर यूज दिस वर्ड। हर कोई टाइम डिफरेंट होता है, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, ये स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है परफॉर्म कैसे कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ, बबल डू बर्स्ट, एंड नॉट नोइंग मार्केट हिस्ट्री इज अ मेजर हैंडीकैप। मार्केट की हिस्ट्री देखो, पिछले 15 साल 20 साल से मार्केट कैसे चल रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, on what basis it is working, and on what basis it has failed. You should know about the history of the market, and history is repeated every time. आज कोविड की वजह से मार्केट गिरा है, कल कोई और वजह से भी मार्केट गिर सकता है, तब देखो तब आप पैसा लगा सकते हो। एवरी टाइम यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, बट वाइल सेलिंग द स्टॉक डू थिंक इट वाइसली, ट्वाइस थ्राइस, 10 बार सोचो बेचते वक्त कि कब आपको कितने पैसे की जरूरत है। फिर बेचने के बाद ऐसा नहीं सोचना है वो स्टॉक प्राइस और ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं, अरे मैं लेट बेचता, तो नहीं, आपको जितना था चाहिए था आपने ले लिया, दैट्स इट फ्रॉम द मार्केट। सो बबल ऑलवेज बर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक in 2001 the Financial Express started writing that energy stocks were all the rage, मतलब वो बहुत ऊपर है, ऊपर जाने वाले हैं। सो मार्केट एनालिसिस प्रोजेक्टेड their earnings to grow 20% for the next several years. उन्होंने उन्होंने यहाँ पे सोचा कि लाइक एनालिसिस करके बता दिया कि लाइक मार्केट में जो एनर्जी स्टॉक्स है, फ्यूचर के एनर्जी स्टॉक्स वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने भी सुजलॉन एनर्जी लेके रखा। Then the company slowed down, hurting the demand of for the power, which resulted in 50 to 60% down in the stock. You have to be a student of market history to understand this its future. So now here, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ऐसा लिखा अपने पेपर में, और बहुत सारे एनालिसिस ने ये प्रोजेक्ट, बहुत सारे एनालिस्ट जो मार्केट के बारे में समझते हैं, वो अच्छी खासी कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में सोचते हैं, उन्होंने बोला 20% तक जाएगा ये, कुछ सालों में 20% बढ़ जाएगा एनर्जी के शेयर्स, ठीक है, जो एनर्जी लेवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोल इंडिया है, ठीक है, ये सब जो कोल रिलेटेड इंडस्ट्रीज है या फिर बाकी की जो एनर्जी सेक्टर्स है, अडानी ग्रीन, अडानी रिन्यूएबल्स, ये सब है, तो ये 20% ऊपर जाने वाले। सो देन द कंपनी स्लोड हर्टिंग द डिमांड फॉर द पावर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पावर की डिमांड कम हो गई और अल्टीमेटली वो स्टॉक 20% से जो बढ़ने वाला था वो 50% 60% से गिर गया। सो यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट हिस्ट्री, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा मार्केट की हिस्ट्री का। मार्केट की हिस्ट्री आपको पता करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझेगा, टू अंडरस्टैंड इट्स फ्यूचर, तब जाके आप फ्यूचर समझ सकते हो मार्केट। सो डू नॉट कम टू इन एनी एनालिसिस, आप खुद का एनालिसिस करो, आप कंपनी की फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग। फॉलिंग इन लव विद प्रोडक्ट्स, अवॉइड दिस मिस्टेक।
सर मैं लैक्मे का यूज करती हूँ प्रोडक्ट, सर मैं पैंटीन यूज करता हूँ, सर हेड एंड शोल्डर, सर कोलगेट, कोलगेट तो हर कोई खरीदता है, सर मैं यही कंपनी का स्टॉक खरीदूंगा। ठीक है, मैंने भी खरीदा एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2600 रुपए का स्टॉक खरीदा, ऐसे ही प्यार में पड़ के। प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, अरे क्या दिखता है इसका प्रोडक्ट, बहुत मस्त है। एनालिसिस नहीं किया कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है, 2600 में खरीदा, 2400 में चल रहा है अभी, एक ही शेयर लिया है, अटक के रखा है वो। ठीक है, बताऊंगा आपको मैं। सो यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक, falling in love with products. Most easiest investment traps to fall into. ब्रू, किसान, ग्रीन, लिप्टन, ये सब जो है, मतलब आप ये सब चीजें देख के आप क्या हो जाओगे, फॉलो हो जाओगे कि नहीं नहीं बाबा बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेल करते हैं, वी विल इन्वेस्ट दैट, वी विल इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। ठीक है, क्लियर? एग्जांपल, कंपनी एबीसी मेक्स प्रोडक्ट एक्स, देन फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द रेवेन्यू ऑफ इट्स कंपनी। मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, रेवेन्यू, मतलब उसका रेवेन्यू कितना निकलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है वो प्रोडक्ट सेल करके, तो वो आपको जरूरी है। आज अगर आपको लगता है कि कोलगेट कंपनी, बहुत सारे लोग कोलगेट ही खरीदते हैं, चलो आपको पता भी चल गया कि लाइक पीपल आर बाइंग कोलगेट, सो अगर वो कोलगेट बाय कर रहे हैं तो कंपनी का कितना रेवेन्यू निकल रहा है उस कोलगेट सेलिंग से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी अपना जो पैसा है, प्रॉफिट है, वो कहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रही है, आर दे गोइंग टू डाइवर्सिफाई इन अ प्रॉपर वे, जहाँ पे फ्यूचर में वो प्रोडक्ट आगे चले, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में वो सोच रहे हैं। जैसे कि पार्ले की कंपनी, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले, पर स्टिल बोलते हैं ना उसका डिमांड यहाँ पे पार्ले जी में ही है, तो उनका मेजर इनकम सोर्स हो जाता है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई हियर you have to find out that whether they are selling the product, no doubt the product is popular in the market, no doubt in that, but are they earning the income from that product, are they actually getting much income or enough income to satisfy the needs of the shareholders, that you have to see. What if it is just 3% of the total revenue, मतलब 100% increase in the product revenue will only increase the company's revenue by 3%। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का रेवेन्यू 100% से बढ़ रहा है, 1 रुपए का चीज है वो आपको 10 रुपए में बिक रहा है, 2 रुपए में बिक रहा है, एक का चीज 2 में बिक रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपके खर्चे ही इतने हैं कि आपकी रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ रही है। मतलब आपका रेवेन्यू सिर्फ 3 पैसा बढ़ा, 1 रुपए का प्रोडक्ट आपने 2 रुपए में सेल करना चालू किया, करो सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपए आपको प्योर प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, आपको इनकम दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपके खर्चे भी बढ़ गए ना। आपने रेट बढ़ाया 1 रुपए का, 2 रुपए के, अभी मैच बॉक्स का देखा आपने, मैच बॉक्स का 1 रुपए का भी कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। आप अगर कोई भी मैच बॉक्स बाय करने होगा तो 2 रुपए का मैच बॉक्स आएगा, लेकिन अभी वो 2 रुपए का मैच बॉक्स आ रहा है, तो उनके वहां पे उतने खर्चे भी बढ़े हैं। तो अल्टीमेटली हाउ मच रेवेन्यू दे आर अर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू सी। पैनिकिंग व्हेन द मार्केट इज डाउन, पैनिक हो जाते हैं लोग। अभी जैसे कि 67,000 तक गया था सेंसेक्स, 67-66 तक, सीधा आके 59,000 पॉइंट पे आ गया। 3 दिन मार्केट ऐसा गिरा, बाप रे, लोग पैनिक हो गए, अपने शेयर सेल कर दिए, लॉस में सेल किए शेयर्स, तो अल्टीमेटली पैनिक हो गए। तो यू शुड अवॉइड द मिस्टेक्स हियर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, अवॉइड द मिस्टेक्स हियर इन द मार्केट। ये छोड़ दो, गया नीचे वापस उठेगा वो मार्केट, अल्टीमेटली हो गया, होल्ड इट। द बेस्ट टाइम टू होल्ड द शेयर इज व्हेन द शेयर इज डाउन, जब शेयर कम प्राइस में है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड करो उसको आप, you will get the returns in future. This is the mantra here. Stocks are generally more attractive when no one wants to buy them, not when the barbers are giving you stock tips. तो यहाँ पे आप याद रखो, स्टॉक कब अट्रैक्टिव रहता है, जब उसको कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। जब सब लोग खरीदने के लिए रेडी है तो आप भी लाइन में लग गए हो, दे दो हम भी खरीद लेंगे, वैसा नहीं करना है। When no one is ready to buy the stock and when you feel that you should buy the stock by doing the fundamental analysis, that is a mantra here. When the market are down, everyone starts selling because of the fear that the market will go down more, और नीचे जाएगा मार्केट, लोगों को ऐसा लगता है। But you don't have to follow the crowd, crowd को follow मत करो। Going against the crowd takes courage, but that courage really pays off. तो आज देखो मेरा पोर्टफोलियो पूरा रेड हो चुका था, अभी वो ग्रीन हो गया। I was having a portfolio of plus of 19,000 rupees, 19,000 का मेरा प्लस था यहाँ पे, मैंने फिर भी सेल नहीं किया, मैंने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट गिरा 3 दिन, सीधा -5,000 आ गया, -5,000 माई पोर्टफोलियो वॉज, मतलब मेरा 24,000 का यहाँ पे क्या हो गया, रेवेन्यू लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया यहाँ पे।
मेरा अप्रिसिएशन 24,000 से कम हो गया, तो यहाँ पे बट देन टू आई होल्ड इट, मैंने होल्ड किया। होल्ड करने से क्या बेनिफिट हुआ, आज वो 5,000 प्लस 2,000 या 2,500 कुछ प्लस में है, धीरे धीरे बढ़ेगा वो। एंड मुझे अभी थोड़ी पैसे की जरूरत है, मैंने उतने ही पैसे लगाए जो मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, डे टू डे लाइफ के लिए मेरे पास उतने पैसे है दैट आई कैन स्पेंड ऑफ। बट जो मैंने लगाए हैं मार्केट में, देखो ये एक चीज रूल हमेशा याद रखना, रिमेंबर दिस रूल, इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू द मार्केट विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द डेली पर्पस। रोज के लिए आपको पैसे जो लगते हैं वो अलग है, वो आपको यूटिलाइज करने, आपके खाने पीने रहने के लिए, आप उतने ही पैसे डालो जितना आपको यूज नहीं है, 1-2 साल के लिए आप देख नहीं सकते हो, देखना भी नहीं हो पैसे, दैट मनी यू कैन पुट इन द स्टॉक मार्केट। अगर उससे ज्यादा डालने जाओगे देन अल्टीमेटली मजबूरी में आपको पैसे निकालने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट से। क्लियर विद इट? द फिफ्थ मिस्टेक, ट्राइंग टाइम द मार्केट, टाइम करना मार्केट को, स्ट्रेटेजी, नो स्ट्रेटेजी टेल्स यू व्हेन टू बी इन द मार्केट एंड व्हेन टू बी आउट ऑफ द मार्केट। तो आपको कभी भी टाइम नहीं करना है, यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं बताएगा, नोबडी विल टेल यू दैट व्हेन टू get an entry into the market or when to get an exit into the market. Here you have to decide when you have to take an entry and when you have to exit. And who is saying that they can time the market usually has to service to sell you. जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये टाइम बराबर है मार्केट में एंट्री करने का, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था, सर सर अमर राजा बैटरी ले लो बहुत भारी है, एकदम सही भाव में मिल रहा सर, ले लो, ले लिया 800 में, 850 में पड़ा है, 750 में, अभी 750 रुपए तक, 750 से 800 रुपए कुछ चल रहा है उसको, नीचे है वो शेयर, ले लिया ना मैंने शेयर दूसरे के बोलने पे, क्या हो गया? अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड हियर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अल्टीमेटली क्या हो गया, 50 रुपए 100 रुपए से डाउन। तो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, आई डिडंट डू एनी फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता तो मुझे दिख जाता था कि शेयर ओवर वैल्यूड है, मुझे नहीं खरीदना चाहिए वो शेयर। सो दिस इज व्हाट the strategy says. Nobody will say that when to enter into the market and when to take an exit into the market. You itself will decide the when to take an entry and when to take an exit. Okay, so no one can find a top in the bottom of the market consistently for 3 times. If anyone can, then she will be the richest person in the world by doing this, but that's not the case. The sixth mistake is to avoid in the stock market is ignoring valuation. Valuation हमेशा चेक करनी है आपको, सबसे पहला पॉइंट है वैल्यूएशन। देखो उसकी वैल्यू क्या है शेयर की आज, is it overvalued, fairly valued or undervalued? Reason to buy the stock, when you think the business is worth more than it's selling for, not because you think a greater fool will pay for more the shares a few months down the road. तो यहाँ पे why you should buy the stock, you should have a reason, you should have a proper reason that आपको क्यों वो शेयर्स की प्राइस शेयर खरीदना है। तो रिलायंस अगर आप बाय कर रहे हो, देखो आप 1273 में यहाँ पे प्राइस दिख रहा था रिलायंस का, ठीक है, आज उसकी प्राइस कुछ 2,500 के आसपास है, तो आपको लगता है कि आप आज भी खरीद सकते हो 2,500 का शेयर, वो 3,000 3,500 तक जाने वाला है, देन यू कैन गो विद दैट शेयर। ठीक है, सो यू शुड नो द रीजन व्हाई टू बाय द स्टॉक। Very beautiful example here. If a price of a pencil is ₹10, you are buying at ₹12, thinking someone will purchase it at ₹15, is a gambling and not investing. The same applies to stock also. तो अगर 10 रुपए का पेंसिल है, वो आप 12 रुपए में खरीद रहे हो, और आप ये सोच के खरीद रहे हो कि मैं उसको 15 रुपए में बेचूंगा, तो भूल जाओ बाबा, ये आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गैम्बलिंग, एंड द सेम अप्लाइज इन द स्टॉक मार्केट। क्लियर विद इट? क्लियर? द वेरी सिंपल एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, पेंसिल वाला याद रखना, भूलना मत, ये हमेशा दिमाग में रखना। 10 की पेंसिल है तो 10 में खरीदो, या ट्राई करो 9 में खरीदने की, आने दो उसका डिमांड कम, आने दो, कम होने दो डिमांड उसका, बाय करो 9 में। जब भी आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, 10 रुपए भाजी का बोलते हो तो आप 9 रुपए देते हो, 8 रुपए देते हो, नहीं थोड़ा कम कर, कम कर, यू ट्राई टू बाय इट इन अ वेरी लेस। बाय घर के यूज के लिए भी कर रहे हो, फिर भी आप बार्गेनिंग करते हो यहाँ पे। द सेम वे हियर ऑल्सो, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग टू सेल समथिंग, when you're buying that thing to sell that thing, then you should buy in a fairly valued price or below that. The same will be applied here in the stock. So you should buy that pencil when someone is giving you at ₹8, then you can sell it at higher price. This is what the investing is. Clear with it? अब आपको मैं क्या दिखाने वाला था यहाँ पे, हाँ कुछ क्वेश्चंस है। ओके, अब आपके सवाल आप पूछ सकते हो यहाँ पे। 828289।
देखो 2.3 का के का यहाँ पे ग्रीन हो गया मेरा पोर्टफोलियो। हाँ, पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स। चलो आज के टॉप गेनर्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये टॉप गेनर्स आज के, मतलब ये पहले का दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको प्राइस का स्टॉक। यहाँ पे प्राइस क्या है, लास्ट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो। पेनी स्टॉक्स टॉप लूजर में मिलेगा यहाँ पे। ये देखो डीके एंटरप्राइज 36 रुपीज, पेनी स्टॉक, कोटियार्ड, ये सब नाम आपने सुने भी नहीं रहेंगे। पटेल इंटीग्रेट, प्रीति इंटरनेशनल, सिली, मॉन्क्स हियर। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर दी पेनी स्टॉक्स। नॉर्मली ये ओनली बायर और ओनली सेलर में दिखेगा, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो पीपल गो फॉर बाइंग एंड सेलिंग ओनली इन दैट। ज्यादा से ज्यादा बायर्स या सेलर्स ही मिलेंगे। बायर रहेंगे तो फिर बढ़ रहा है स्टॉक, सेलर रहेंगे तो लोअर सर्किट बैठा है। यहाँ पे मेरे पास पेनी स्टॉक में एक ही स्टॉक है, वो है सुजलॉन एनर्जी, 7 रुपए 10 पैसे का है, जिसमें मैंने और आर पावर एक है, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आर पावर में, मुझे नहीं करना है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे। देन और एक पेनी स्टॉक में यस बैंक है, जो मेरे पोर्टफोलियो में है, कुछ 35 रुपए का उसको बाय किया है मैंने। आज उसकी वैल्यू कुछ है 13 रुपीज 15 पैसा। देन आई डोंट हैव एनी पेनी स्टॉक। हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सुबेक्स लिमिटेड, ये भी पेनी स्टॉक्स है। देन आइडिया है पेनी स्टॉक। सो दीज आर दी पेनी स्टॉक्स हियर, ठीक है। So penny stocks market capitalization normally देखा जाए तो in general stock that are priced lower with low market capitalization are commonly referred to as penny. In the stock market scenario, a stock who present the value below than 10 रुपीज से कम रहता है, वो पेनी स्टॉक बोलते हैं, या स्मॉल कैप स्टॉक स्टॉक बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। नॉर्मली 5,000 करोड़ से कम रहेगा अगर पेनी स्टॉक से। सो 5,000 करोड़ से अगर उसका स्टॉक कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पेनी स्टॉक। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाऊंगा। अभी की क्लास में हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म अप्रोच समझना है, फ्रेश। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट। आरवीएनएल लाइन नहीं समझा मैं सौरभ, ठीक है। कैसे करना है फंडामेंटल, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास में बताया जाएगा। यस, यस, क्लियर विद योर डाउट प्लीज रिप्लाई। एक दिन में बच्चों सब नहीं सीख सकते हो, तो उसके लिए इसीलिए मैंने क्लासेस डिवाइड किए हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है, दे आर द जेन्युइन क्वेश्चंस, आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट इन द अदर क्लासेस, नॉट इन दिस क्लास। या सो यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड है, रेड है, रेड है, ये सब ग्रीन था। मैं काइट ऐप क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से यूज करता हूँ और मेरे लिए ये कन्वीनियंट है। काइट ऐप, जेरोडा, काइट जेरोडा मतलब वही जेरोडा। सर 15 नवंबर से कॉलेज ऑफलाइन ओपन होगा क्या? यस, कॉलेज ऑफलाइन ओपन। आपको छुट्टी कब तक दिया है, नोटिस क्या दिया है आपको चंदन? नोटिस कब तक का दिया आपको, कब तक छुट्टी है? रेड मीन्स लॉस, यस कंचन, रेड मीन्स लॉस हियर। ये सब रेड में देख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने खरीदा है 1107 में, और ये 959 रुपीज उसका आज वैल्यू चल रहा है। मतलब मैंने आरती इंडस्ट्रीज के 7 शेयर खरीदे हैं, तो मेरा यहाँ पे कुछ 1,000 रुपए का लॉस है यहाँ पे। मतलब कुछ अराउंड 40 प्लस 147 रुपीज का यहाँ पे अल्टीमेटली लॉस है। तो 7 शेयर का 1,000 रुपए कुछ होता है, लॉस है मेरा वो।
नोटिस नहीं आई, ओके ओके ओके, जब भी नोटिस आएगा आपको बताया जाएगा कब ऑफलाइन कॉलेज चालू हो रहा है, बट यस डेफिनेटली 100% चांसेस ऑफलाइन चालू होगा कॉलेज। या ओके, यस प्लीज, यस बोलो, और कुछ डाउट है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर मैंने 200 शेयर खरीदे, कितने खरीदे हैं, सॉरी टाटा पावर 11 शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का खरीदा 129 का, उसका वैल्यू कितना हो गया 231 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 1121 का प्रॉफिट है यहाँ पे। ओके कंचन, या एनीथिंग एल्स, आस्क योर डाउट्स। अच्छा, कितने लोगों ने अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है ग्रुप पे? अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ओपन नहीं किया है अकाउंट। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, जिन्होंने हाफ में ही अकाउंट छोड़ दिया है, मतलब किया तो है लेकिन अभी भी स्टिल हाफ में ही छोड़ दिया है, दैट इज मोनीश शंबिरे, मोनीश शंबिरे, देन शिव कुमार प्रजापति, वेदांति राउत, निखिल बोहिर, हिमानी गारे, श्वेता वाइकर, इन्होंने अभी तक आगे का प्रोसेस नहीं किया है। कर दो, अकाउंट ओपन कर दो, फिर बाद में। हाँ, आपको फायर्स पे अकाउंट ओपन करना है, आई यू ऑल इंटरेस्टेड टू ओपन द अकाउंट इन फायर्स? सो लेट मी नो। ये म्यूचुअल फंड के लिए मैंने ग्रो ऐप पे आपको ओपन करके दिया है। इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट इन फायर देन आई विल शेयर इट, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन मतलब आप उस पे से कर सकते हो। या समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन हियर, सर प्लीज डे प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स, डे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन हुआ था, अभी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन स्टॉक मार्केट ओपन हुआ था लास्ट, तब मेरा 32 रुपीज का बेनिफिट हुआ। उस दिन में जो मेरे पास शेयर्स है मैंने खरीदे हैं, उसमें सिर्फ 32 रुपीज की बढ़ोतरी आई, टोटल जितने भी शेयर्स है उसका टोटल करके, मतलब कुछ शेयर गिरे, कुछ शेयर ऊपर आए, कुछ शेयर नीचे गए, ऊपर आए, ऐसा करके टोटल मेरा प्रॉफिट, उस दिन मेरा प्रॉफिट मेरा 32 रुपीज का बढ़ा। और अभी तक मैं कितना प्लस में हूँ, 2300 प्लस में हूँ। क्लियर विद इट? या सर प्लीज ट्राई टू टेक ऑफलाइन लेक्चर ऑफ फंडामेंटल, आई ट्राई माय बेस्ट टू कीप द ऑफलाइन लेक्चर, बट कैसा है, नॉर्मली देखा जाए तो ऑनलाइन ही होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं बाद में 40 डेज के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बाद कहीं जाने नहीं वाला हूँ, आप पूछ सकते हो मुझे कुछ भी रहेगा तो। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड एंड डीलिस्टेड शेयर्स? लिस्टेड शेयर्स एंड नॉन लिस्टेड शेयर्स, थी देयर आर वेरियस कंपनीज इन आवर कंट्री, बहुत सारी कंपनीज हमारे कंट्री में। तो लिस्टेड मतलब क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, लिस्टेड कंपनी। क्लियर विद इट? लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, जिन्होंने अपने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पब्लिक से पैसा लेके हम लोग कंपनी चलाएंगे, ठीक है। दैट कंपनी इज नोन एज द पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है। देन नॉन लिस्टेड कंपनी, कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, दे आर दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसी बहुत सारी कंपनी, बोईसर में जाना, आप पूछना, आपका स्टॉक मार्केट में आपका कंपनी का नाम है, वो बोलेंगे नहीं है हमारा नाम, क्योंकि उन्होंने अपने सेबी के साथ उन्होंने ये किया ही नहीं है, और उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पास उनके जो फंड देने वाले लोग हैं 10-15 लोग हैं, उसमें उनका अच्छा खासा जो कंपनी है वो चल जाता है। सो दैट इज व्हाट द नॉन लिस्टेड इज। डीलिस्टेड शेयर्स मींस आई कैन से द कंपनी शेयर्स नहीं होता है, कंपनी होते हैं। द कंपनी विच इज बीन डीलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, तो उनके परफॉर्मेंस या उनके कुछ फ्रॉड वगैरह करने की वजह से उनको स्टॉक एक्सचेंजेस पे से उनकी कंपनी को निकाल दिया गया, दैट इज नोन एज द डीलिस्टेड। या फिर कंपनी वो बंद हो चुकी है तो डीलिस्ट हो गई, ठीक है। दैट इज नोन एज द लिस्टेड, नॉन लिस्टेड एंड डीलिस्टेड। क्लियर विद इट फरहाना? आनंद राठी, आई डोंट नो आनंद राठी। नहीं, डी डेकोर तो शायद नहीं रहेगा, डी डेकोर आनंद राठी कंपनी के बारे में नहीं पता, लेकिन डी डेकोर नहीं है कोई कंपनी, नहीं। और कैसा रहता है ना, जो कंपनी है डी डेकोर है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, डी डेकोर का दूसरा भी कुछ नाम रहता है, वो लोग नॉर्मली क्या रहता है, देखो डी डेकोर है यहाँ, ठीक है। तो डी डेकोर, इज इट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज? तो यहाँ पे नॉर्मली आपको बता देंगे डी डेकोर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो आनंद राठी
ये पहले देखते हैं हम लोग लिस्टेड। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। आनंद राठी ग्रुप क्या है, ये क्या बनाती है कंपनी? ओके, फर्नीचर फर्निशिंग्स है क्या इनका बिजनेस? एस्टैब्लिश वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग ऑफरिंग वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल ये है, तो इसके बारे में तो रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने तो देखा नहीं। जंप सक्सेसफुल जर्नी ओवर 20 इयर्स। ओके ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस गोरेगांव में है, लोवर पर। ओके, कंपनी का क्या बिजनेस है? इन्वेस्टमेंट सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, एनबीएफसी भी है। ठीक है, ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा कैसे कमा रहे हो? ओके, फाइनेंसिंग से, एडवाइजरी से। ठीक है, आनंद राठी ना, तो आनंद राठी, उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ARL नहीं, आनंद रेयॉन है ये तो। नहीं नहीं नहीं, ये about dropping its plans, sitting different market condition. I stock currently IIFL Wealth is the only listed pure wealth management company with market capitalization। नहीं है, आनंद राठी नहीं है यहाँ पे लिस्टेड। वो आने वाली थी कंपनी 2018 में, बट ड्रॉप हो गया है ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। आई नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट। नो, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट फराना, लिस्टेड शेयर्स BSE NSE में ही होने चाहिए, या कोई भी दूसरे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी रह सकते हैं, दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकते हो। Yes, anything else you want to ask students? Anything students? Yes, please ask your doubts. Nobody wants to ask anything? Shall we wind up, students? Please reply. Please reply. Okay, then we'll wind up. That's all. Thank you, students. Thank you so much for listening me. Have a nice day. Bye-bye. Take care. Okay, you can leave. Thank you so much. Have a nice day.